चालू कीजिए सर। Okay. थैंक यू। Okay. So चलो very राम good, का नाम very लेके good, चालू करते हैं। very good morning, friends. Today we will see some of the case laws which are decided by the Supreme Court. As per Supreme Court, in the new syllabus, there are 27 case laws. So out of those 27, 16 have already been covered in the previous syllabus as well. So PPT relating to those 16 cases and the video lectures pertaining to those 16 cases are already available on my YouTube channel. We would also cover them at some point of time if required. But first of all, let us read the new case laws. I have also never read these case laws. So I am reading also for the first time with you. So let us see what this Manish Kumar versus Union of India says. Lot of writ petitions. There are a bunch of. Yes. Now they say the petitioners. Who is the petitioner? Petitioner in this case is Manish Kumar. And we know in Supreme Court we can approach the Supreme Court by way of writ, which is authorized by Article 32. So Article 32 gives the power to a common man to approach directly the Supreme Court without first going through the normal route of case. Only in case of violation of fundamental rights. Yes. And similarly, you can approach High Court also for violation of fundamental rights under Article 226. So in this case, the K.M. Joseph, who is the justice, he says the petitioners have approached this court means Supreme Court, under Article 32 of the Constitution of India. They call in question. So these sections, Section 3, Section 4. Section 3, as we know, is pertaining to definitions. Okay? Section 4, it pertains to default, triggering of default. And Section 10 talks of the initiation of CIRP by the corporate debtor. Applicant on behalf of the corporate debtor. So these are the basic 3 sections which have been put to question of the Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Act 2020, hereinafter referred to the impugned amendments. Basically, so they are challenging the amendments which are covered in Section 3, 4 and 10. Section 3 of the impugned amendment amends Section 7(1) of the Insolvency and Bankruptcy Code. ये क्या बोल रहे हैं कि Section 3 में amendment हो गई Section 7(1) की. क्या बोला? और Section 4 जो है it incorporates an additional explanation. आप इसके साथ साइड बाय साइड अपना जो है बेयर कोड भी खोल लीजिए. बेयर कोड खोलेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. मैं पहले जो 1 या 2 केस लॉ है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा. उसके बाद में जो है फिर आपको एक आदत पड़ जाएगी केस लॉ पढ़ने की, तो वो जो है फिर उसमें कम टाइम लगेगा. और आज हम कोशिश करेंगे कि इनको खत्म करके ही उठे. ठीक है ना? तो 16 से 27 तक है, जो भी टाइम लगेगा तो इसको कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दें. तो जिस हमें समझ में आ गया, आर्टिकल 32 में रिट लगाए गए. 3, 4 और 10 सेक्शन में कुछ अमेंडमेंट हुई थी जिनको चैलेंज किया गया. ठीक है. सेक्शन 7(1) ऑफ द कोड बिफोर द अमेंडमेंट. देखो सेक्शन 7 में क्या अमेंडमेंट हुई. ये बोलता है इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है. ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर as may be notified by the central government may file an application. So it says, भाई हमें मालूम है कि सेक्शन 7 में कैसे कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है. सेक्शन 7 में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या तो वो खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, या दूसरों के साथ मिल करके कर सकता है, या कोई भी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर कोई भी फाइल कर सकता है. ठीक है. एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट may file an application for initiating CIRP against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default is occurred. तो डिफॉल्ट ट्रिगर हो गया सेक्शन 4 में. तो सेक्शन 7 में कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ये सेक्शन 7(1) बताता है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए डिफॉल्ट इंक्लूड्स अ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल डेट ओड नॉट ओनली टू द एप्लीकेंट बट टू एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर. क्योंकि यहाँ पर ना जो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी नहीं है.
कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी क्या कहती है कि भाई कोई भी आदमी कोर्ट केस तभी फाइल कर सकता है जब उसका उस केस से कुछ लेना देना हो, ठीक है। यहां पर ये चीज काम नहीं आती। यहां पर क्या बोलता है कि डिफॉल्ट हुआ है बस, ठीक है। डिफॉल्ट इंक्लूड्स डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल डेट, चाहे वो उसका हो जो एप्लीकेशन लगा रहा है, चाहे किसी और का हो, मतलब जिसका डिफॉल्ट नहीं भी हुआ वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है, लेकिन डिफॉल्ट होना जरूरी है सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो अमेंडमेंट क्या है जिसको चैलेंज किया गया, अमेंडमेंट जो आई, अमेंडमेंट टू द सेम बाय सेक्शन 3 ऑफ द इम्प्यूग्ड अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट्स 3 प्रोवाइजोस टू सेक्शन। देखो ऐसा होता है कि कोई भी सेक्शन होता है ना, जैसे तो सेक्शन में एक तो मेन सेक्शन होता है, फिर उसका सब सेक्शन, उसमें फिर वो प्रोवाइजो लगा देते हैं। प्रोवाइडेड दैट अगर लिखा है तो ये फर्स्ट प्रोवाइजो, अगर सेकंड प्रोवाइजो होगा तो वो प्रोवाइडेड फर्दर हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड होगा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोवाइजो क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट, सेक्शन 7(1) यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जब ये केस लॉज हम पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको आईबीसी की पूरी नॉलेज है, क्योंकि जब आपको आईबीसी की पूरी नॉलेज होगी तभी आपको ये केस लॉ समझ में आएंगे। अगर आपने मान लो आईबीसी ही नहीं पढ़ा तो फिर केस लॉ समझना ज्यादा मुश्किल होता है, या तो ये कि आप साइड बाय साइड उनको भी पढ़ें इस तरह से, लेकिन फिर भी ये इट प्री सपोजेस द नॉलेज ऑफ आईबीसी। तो सेक्शन 7 में क्या अमेंडमेंट आई जिसको चैलेंज किया गया, प्रोवाइडेड दैट फॉर द, एक मिनट जी कॉल, हेलो, हाँ बेटे, हाँ जी। तो इसमें क्या बोला कि प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रेफर टू इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 6A ऑफ सेक्शन 21। अब आप सेक्शन 21 खोल लीजिए। सेक्शन 21 का क्लॉज ए और क्लॉज बी क्या बोलती थी, ये क्लॉज ए और क्लॉज बी बोलती थी कि भाई एक तो जो होम बायर्स की केस की बात हो रही थी इसमें, 21 एक बार खोल लेंगे, सेक्शन 21, क्योंकि एक दो केस लॉ अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे ना उसके बाद फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। 21 में क्या बोलता है, 6A का ए और बी, तो 6A क्या बोलता है, 6A में बोलता है अगर फाइनेंशियल डेट, ये पेज नंबर है 2.1.95, where a financial debt is in the form of securities or deposits and the terms of the financial debt provide for appointment of a trustee। जैसे कई बार क्या होता है डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, हमें मालूम है, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपॉइंट होता है डिबेंचर ट्रस्टी, जो है मेनली बैंक्स ही होते हैं। Where a financial debt is in the form of securities or deposits and the term of the financial debt provide for appointment of a trustee or agent। इसका सेक्शन जो कंपनीज एक्ट है वो भी बात करता है कि आपको ट्रस्टीज अपॉइंट करने हैं अगर आपके 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स हैं तो। To act as authorized representative for all the financial creditors, such trustee or agent shall act on behalf of such financial creditors। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर फाइनेंशियल डेट जो है उसमें सिक्योरिटी या डिपॉजिट्स इन्वॉल्व है और उसमें ये टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में ये है कि भाई एक ट्रस्टी अपॉइंट होगा या एजेंट अपॉइंट होगा, तो ये ऐसा जो ट्रस्टी या एजेंट है वो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बिहाफ पर एक्ट करेगा। ये 21 का 6A का ए बोलता है, ठीक है। और फिर बी क्या बोलता है, बी ये बोलता है कि अगर if debt is owed to a class of creditors exceeding the number as may be specified other than the creditors covered under clause A or subsection 6, ठीक है। जो क्लॉज ए में आ गए वो तो पहले ऊपर हो गए, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह। तो ये क्या कहता है कि आईआरपी जो है, ये बेसिकली होम बायर्स की बात करता है कि आईआरपी एक एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अलोंग विद लिस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंटेनिंग द नेम ऑफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल other than the IRP to act as their authorized representative who shall be appointed by the adjudicating authority prior to the first meeting of the committee of creditors। तो बी ये बोलता है कि भाई जैसे इसका बारे में हमने पढ़ा ही है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए 3 आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस देनी होती है, 3 में से एक वो फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये आगे क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फॉर दैट, ठीक है। ये तीनों अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया। अगला है, यहां बोलता है कि filed jointly by not less than 100 of such creditors in the same class or not less than 10% of the total number of such creditors in the same class whichever is less। क्या होता था कई बार ना, होम बायर एक होम बायर उठ के खड़ा हो जाता था वो कंपनी को बंद करवाने के चक्कर में।
अब इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, एक एक नहीं आ सकता, कम से कम या तो 100 आए उसी क्लास के, ठीक है, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ सच क्रेडिटर्स है इन द सेम क्लास उसका 10%, विच एवर इज लेस, ठीक है, या तो 10 हो या कम से कम 100 हो. Provided further that for the financial creditors who are allottees under a real estate project, an application for initiating CIRP shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project. तो ये अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के केस में कहा कि भाई आपको सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है, या जो 10% है आपको वो कहां से देखना है, ये 10% देखना है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज अंडर द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस, ठीक है. तो या तो 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच अलॉटीज, ठीक है, या नॉट लेस देन 100 ऑफ अलॉटीज. ये हमारा 21 का 6 से बोलता है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ये तीसरा पॉइंट क्या आ गया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where an application for initiating CIRP against a corporate debtor has been filed by a financial creditor referred to in the first and second proviso. फर्स्ट में डिपॉजिट ट्रस्टी वगैरह की बात की, सेकंड में बात की उसने ये क्लॉज ए और सब सेक्शन 6. सब सेक्शन 6 में क्या बात करता था, सब सेक्शन 6 में बात करता था कि जहां पर कोई कंसोर्टियम फाइनेंस है. 21 का 6 बात करता है कंसोर्टियम. तो 3 तरह के हमारे आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एक तो कंसोर्टियम फाइनेंस के केस में, एक हो गए डिपॉजिट ट्रस्टीज के केस में, डिवेंचर ट्रस्टीज के केस में, और तीसरे हो गए होम बायर्स के केस में, ठीक है. Provided also that where an application for initiating CIRP against a corporate debtor has been filed by a financial creditor referred to in this first and second proviso and has not been admitted by the adjudicating authority, क्योंकि ये ना अमेंडमेंट ओरिजिनल नहीं थी, मतलब 2016 में जब कोड आया तो ये अमेंडमेंट नहीं थी, ये आपकी आई है अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, ठीक है. तो इन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी पहले से फाइल्ड है, जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया तो आपको इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कितने दिन में, विद इन 30 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द सेड एक्ट, फेलिंग विच द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन बिफोर इट्स एडमिशन. अदरवाइज वो मान लिया जाएगा कि आपने एप्लीकेशन विथड्रॉ कर ली, ठीक है ना. भाई हो सकता है ना, जब ये अमेंडमेंट आया कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग थी जिसमें ये वाली क्लास मीट नहीं हो रही थी, ठीक है, भाई 10% से कम ने किया हुआ था फाइल, क्योंकि पहले तो एक भी कर सकता था ना. ये तो अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया कि भाई इतने कर सकते हैं, नॉट लेस देन 10% या नॉट लेस देन 100, ठीक है. इसके बाद में ये फिर आगे बात करता है कि सेक्शन 11 क्या करता है. सेक्शन 11 बिफोर द अमेंडमेंट रीड एज फॉलोज. इसमें और एक चीज थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ कहाँ पढ़ा था कि जैसे कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल जो भी है वो सब लोग फाइल कर सकते हैं. लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि कैन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर फाइल एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, कैन पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इनिशिएट CIRP ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, दैट वाज द क्वेश्चन. मैं पढ़ने में आया था, तो उसमें नहीं लिखा है, कोर्ट का जजमेंट आया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट फाइल एनीथिंग, बट उन्होंने डिफरेंशिएट किया है. ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल, जो हम लोग अभी आप पढ़े हैं ना, ही कैन फाइल ऑन बिहाफ ऑफ, बट पावर ऑफ अटॉर्नी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके लिए मैंने बात किया, और कुछ बिल्कुल ठीक, जस्ट कीप रिमेंबर एवरीबॉडी दैट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट फाइल अ CIRP एप्लीकेशन. बिल्कुल. आगे चलते हैं. तो सेक्शन 11 क्या बोलता है. सेक्शन 11 में जो अमेंडमेंट से पहले क्या था कि कौन कौन से लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते. ये हमें मालूम है कि सेक्शन 11 में बेसिकली वही लोग हैं जो ऑलरेडी अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनकी CIRP चल रही है, लिक्विडेशन चल रही है, ठीक है, या 12 महीने नहीं हुए, इस तरह के लोग इसमें आते हैं. तो 11 में कहता है कि जिसकी पहले से CIRP चल रही है वो नहीं आ सकता, ठीक है. अब वो पहले से अस्पताल में पड़ा हुआ, उसका नया ऑपरेशन कहां से करोगे. दूसरा, ए कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 months preceding the date of making of the application. अब 12 महीने पहले ही उसकी CIRP कंप्लीट हुई है. तीसरा क्या बोलता है, जिसने कोई वायोलेशन कर दिया है रेजोल्यूशन प्लान का जो 12 महीने पहले अप्रूव हुआ था. और चौथा क्या है, ए कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम जिसके अगेंस्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर हो चुका है, ठीक है. ये था हमारा सेक्शन 11. अब एक्सप्लेनेशन जो इसमें इंसर्ट हुई वो क्या थी. एक्सप्लेनेशन इन्होंने 2 डाल दी. इसमें क्या बोला, explanation 2 में डोला, for the purposes of this section it is hereby clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor referred to in clauses A to D from initiating
CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। इसका मतलब क्या है कि उसके अगेंस्ट में तो कोई एप्लीकेशन नहीं लगा सकता जिसकी CIRP चल रही है, जिसके अगेंस्ट में लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, लेकिन वो लगा सकता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि जो कॉर्पोरेट डेटर जिसका नाम A to D में दिया गया है, जो अस्पताल में खुद पड़ा हुआ है, वो दूसरे से पंगे ले सकता है, इससे कोई पंगे नहीं ले सकता। ठीक है, फ्रॉम इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। अच्छा, अब 32A क्या बोलता है? 32A इंसर्टेड थ्रू द इम्प्यूग्ड अमेंडमेंट रीड्स एज फॉलो। इन्होंने क्या किया कि सारी ही अमेंडमेंट्स को कवर कर दिया जजमेंट में, जबकि एप्लीकेशन जो पहले लगाई गई थी वो किसके लिए लगाई गई थी? आपकी 3, 4 और 10 के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहां जब ये कर रहे हैं तो यहां पर ये सारी ही अमेंडमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने सेक्शन 7 भी ले लिया, सेक्शन 11 भी ले लिया, और उसके बाद सेक्शन 32A भी ले लिया। 32A क्या बोला? 32A इंसर्टेड थ्रू द अमेंडमेंट। 32A में क्या आया था बेसिकली? 32A में बेसिकली ये आया था कि जिस भी कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान पास हो जाता है, उसके जो नया प्रमोटर आया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। कंपनी तो सेम ही रहती है, ठीक है ना भाई। कंपनी जो है, कंपनी का कई बार नाम बदल जाता है, सिर्फ मालिक उसके बदल जाते हैं, उसके प्रमोटर बदल जाते हैं, डायरेक्टर बदल जाते हैं, कई बार कंपनी का नाम भी सेम रहता है। तो ना तो उस कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ना जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आया है या जो नए प्रमोटर आए हैं, उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये सेक्शन 32A बोलता है। ठीक है ना। और ये आया क्यों था? कि भूषण स्टील वाला केस हुआ था, उसलिए आया था। जो पुराने प्रमोटर हैं उनके अगेंस्ट में आप एक्शन लो, या अगर नए प्रमोटर भी पुराने से मिले हुए तो आप एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज आप एक्शन नहीं ले सकते। बेसिकली 32A ये बोलता है। ठीक है, अब क्या बोला इसमें 32A की अमेंडमेंट में? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स लायबिलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर। फॉर कॉर्पोरेट डेटर क्यों बोला? क्योंकि कंपनी का नाम तो वही रहा ना, कंपनी तो वही रही। ठीक है, CIRP के पास भी कंपनी वही रही, तो लायबिलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर for an offence committed prior to the commencement of the CIRP shall cease, and the corporate debtor shall not be prosecuted for such an offence from the date the resolution plan has been approved। ठीक है, तो जिस डेट से रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तो ये जो लाइबिलिटी है कंपनी की वो सीज हो जाएगी फॉर एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द CIRP। ठीक है, if the resolution plan results in the change in the management or control of the corporate debtor to a person who was not। भाई नया आदमी आ गया, ठीक है, वो नया, वो कंपनी में पहले फ्रॉड हुआ था, अब ये नया आदमी आ गया, नए आदमी ने, नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने, उसने पैसे दे करके कंपनी को जो है उसका CIR, उसका जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, उसको रिजॉल्व कर दिया वो क्राइसिस को। ठीक है, ये जो नया आदमी आया ये पुराने के मैनेजमेंट में नहीं था। ठीक है, या फिर a person with regard to whom the relevant investigating authority has on the basis of material in its possession reason to believe। ठीक है, किनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है? जो पुराने मैनेजमेंट में था, ठीक है, या उसकी रिलेटेड पार्टी थी। क्या बोलता है? who was not। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए, इनके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है, इनके अलावा में एक्शन नहीं हो सकता। अगर वो पुरानी मैनेजमेंट में था, या उसकी रिलेटेड पार्टी थी, या कोई ऐसा आदमी था जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पास कोई मटेरियल है कि उसने इस चीज को एनकरेज किया, अबेट किया। ठीक है, और it has filed, submitted or filed a report or a complaint to the relevant statutory authority or court, और उस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या एजेंसी ने अपनी कंप्लेंट जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोर्ट को दे दी है, तो उस केस में आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते नए वाले मैनेजमेंट को। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ ए प्रोसिक्यूशन हैड बीन इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द CIRP, आपने पहले ही प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया था, ठीक है, तो वो जो है इट शैल स्टैंड डिस्चार्ज्ड from the date of approval of the resolution plan subject to requirements of this subsection having been। बेसिकली बात ये है कि जो नया आया है, जिसने नई वो कंपनी खरीदी है, उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकते अगर वो पुरानों से मिला हुआ नहीं है। तो अगर पुरानों से मिला हुआ है तो आप एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। ये मोटी मोटी बात 32A बोलता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये कहाँ पर है? पुराना से मिला हुआ होगा तो ये है ना, ये पहला जो लिखा हो ना, पहला हु वाज नॉट,
who was not a promoter or in the management or control of the corporate debtor or a related party of such a person. Okay, okay. यहां पर है ना, ये हो गया ना. Okay, okay. Provided further that every person who was a designated partner, ठीक है, कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर था एलएलपी के केस में, हमें मालूम है कि एलएलपी में दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर और एक होते हैं पार्टनर. डेजिग्नेटेड पार्टनर मोटा मोटा आप समझो जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब साइन करते हैं. तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में भी कुछ बोलता है. क्या बोलता है कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर था या एक ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ठीक है, as defined in clause 60 of section 2 of the Companies Act, or was in any manner in charge of or responsible to the corporate debtor for the conduct of its business and was directly or indirectly involved in the commission of such offense shall continue to be liable. ठीक है, तो इसका मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, ठीक है, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस. कई बार क्या होता है वो डायरेक्टर नहीं होगा, मान लो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर हो या किसी और नाम से ऑफिसर हो, क्योंकि ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी डेफिनेशन है क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज 60 में ऑफ कंपनीज एक्ट. अगर ऐसा भी कोई आदमी है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है. ठीक है, डायरेक्टली इन कमीशन ऑफ सच ऑफेंस एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड और कंप्लेंट फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. मतलब किसी जैसे एसएफआईओ ने कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है, उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम आ रहा है या कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट का नाम आ रहा है कि भाई ये भी इस ऑफेंस में इन्वॉल्व था, ठीक है ना, तो उस केस में उसके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है. ठीक है, notwithstanding that the corporate debtors liability has ceased under this subsection. देखो कई बार क्या होता है कि कंपनी की अलग लायबिलिटी होती है, डायरेक्टर्स की अलग लायबिलिटी होती है. जैसे हम पेनल्टीज ऑफेंसेस के प्रोविजन पढ़ते हैं कंपनी एक्ट में, भाई कंपनी पर इतना फाइन लगेगा, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उस पर इतना लगेगा. तो कंपनी की लायबिलिटी चाहे सीज भी हो जाए, लेकिन ऐसा जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है जो इन्वॉल्व था इन कमीशन ऑफेंस, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी. ये सारी बातें 32A बोलता है. आगे चलते हैं. नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिलेशन टू एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. ठीक है, उस कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि भाई कंपनी तो अब नई हो गई, ठीक है ना, भाई कार है, कार का पुराना आदमी चोर था, ये आदमी ईमानदार है, तो इसके अगेंस्ट में या उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. तो नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिलेशन टू एन ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ CIRP वेयर सच प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर ए रेजोल्यूशन प्लान. क्योंकि क्या है कि भाई आप रेजोल्यूशन प्लान बनाते हो, रेजोल्यूशन प्लान में क्या बताते हो कि जी देखो ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं. उनको देख करके कोई नया बंदा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसको कहते हैं वो आपकी कंपनी को खरीद लेता है, ठीक है ना, उसमें इक्विटी डालेगा या जो भी करेगा, पेमेंट करेगा. तो अब मान लो कह दो भाई ठीक है, उसने उस बेस पे उस कंपनी को खरीद लिया, अब कह दो ये जो प्रॉपर्टी है जी कंपनी की, ये तो ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इसको तो हम ले जाएंगे नहीं, ऐसा, ठीक है ना. तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहाँ पे चालू होगी, हाँ. वो कंटिन्यू रहेगी. सिविल में आपको छुटकारा मिल सकता है, सिविल क्रिमिनल में नहीं मिल सकता है. ऑफिसर इन डिफॉल्ट के हाँ, सामने वो समझो तो है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल बिल्कुल प्रोसीडिंग. बिल्कुल वहां पे उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, प्रोसिक्यूटेड हाँ एंड पनिश्ड. ये दो हाँ वर्ड में ऐसा समझता है कि ये बिल्कुल दो वर्ड खाली क्रिमिनल में ही आते हैं. बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल. तो CRPC के अगेंस्ट अगर से थ्रू होता है हाँ तो वो कंटिन्यू रहेगा हाँ क्रिमिनल. हाँ. सिविल नेचर रहेगा तो वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं रहेगा, तो which नहीं results होगा. in the change in control of the corporate debtor to a person or sale of liquidation assets under the provision who was not. ठीक है, तो ऐसे किसी आदमी को दे दिया जो कि वो प्रमोटर नहीं था या रिलेटेड पार्टी नहीं था. इसका क्या मतलब, अगर नया बंदा भी प्रमोटर था पुराने वाले में या उसकी रिलेटेड पार्टी है, उसके अगेंस्ट में बाद में भी एक्शन हो सकता है. ठीक है, या फिर ए पर्सन विद रिगार्ड टू हिम, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसको लगता है कि भाई इसी ने अबेटमेंट किया है या कंस्पिरेसी की है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको कोई एक्शन नहीं लिया जाता. अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट
An action against the property of the corporate debtor in relation to offense shall include the attachment, seizure. मतलब आप कंपनी की प्रॉपर्टी ना तो अटैच कर सकते हैं, ना सीज कर सकते हैं, रिटेंशन या कन्फिस्केशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट टू बार एन एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी तो आप टच नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी है, कोई डायरेक्टर की प्रॉपर्टी है मान लो, या कोई ऐसा आदमी है जिसने ये who has acquired such property through CIRP or liquidation process and fulfills the requirements specified in this section, against whom such an action may be taken under such law as may be applicable। लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी को इम्यूनिटी है, किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को इम्यूनिटी नहीं है। Subject to the provisions contained in subsection 1 and 2 and notwithstanding the immunity given in this section, the corporate debtor and any person who may be required to provide assistance under such law as may be applicable shall extend। ठीक है, लेकिन देखो उसको टच तो नहीं करेंगे नए प्रमोटर को, लेकिन मान लो उससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको असिस्टेंस देनी पड़ेगी, इतना ये बोलता है। 32A भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमने 32A भी पढ़ लिया, 11 भी पढ़ लिया, 7 भी पढ़ लिया, 7(1) के जो एक्सप्लेनेशन 3 प्रोवाइजो नए ऐड किए वो भी पढ़ लिया। अब इसमें देखते हैं क्या बोलता है। इस अगली जजमेंट में, अगला जजमेंट का अगला पॉइंट बोलता है कि इसमें पिटिशनर कौन है। पिटिशन कौन से आर्टिकल में लगाई थी इसमें, जो लोग सुन रहे हैं, पिटिशन कौन से आर्टिकल में लगाई थी? 32। हाँ 32। तो इसमें बोलता है भाई पिटिशनर कौन है, बोलता है मोर देन द लॉयंस शेयर ऑफ द पिटिशनर। वो कहता है ज्यादातर जो पिटिशनर है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अलॉटी, ठीक है। एंड हेरेन आफ्टर रेफर टू एज अलॉटीज दे हैव ट्रेन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल गन एट द इम्प्यून्ड प्रोविजंस। ये जो नए प्रोवाइजो आए हैं इन पर इन्होंने इनको चैलेंज किया है 32 में, ठीक है। अगला, अंडर द सेकंड प्रोवाइजो a new threshold has been declared for allotee to move an application। इन्होंने कह दिया भाई ऐसा है कि सेक्शन 7 में पहले तो ये नहीं था, जो भी कोहोस्ट है वो म्यूट कर सकते हैं अगर किसी की आवाज आ रही है तो, है ना जी। जो कोहोस्ट हम इसीलिए बनाते हैं कि वो आप म्यूट कर दीजिए जहां से भी आवाज आ रही है। अंडर द सेकंड प्रोवाइजो ए न्यू थ्रेशोल्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर, इन्होंने कह दिया यार तुमने तो नया थ्रेशोल्ड दे दिया, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले तो एक सिंगल रियल एस्टेट अलॉटी भी जा सकता था, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया भाई तुमने अमेंडमेंट में क्या किया, तुमने कह दिया नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 10% रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में तो आप उसी प्रोजेक्ट के लो, तो ये क्या चीज है, ठीक है। तो अंडर द सेकंड प्रोविजन न्यू थ्रेशोल्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर अलॉटी टू मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 फॉर ट्रिगरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। थ्रेशोल्ड इज रिक्वायरमेंट दैट कि भाई 100 अलॉटीज होने चाहिए या फिर 10 होने चाहिए, और अगर आपने पहले एप्लीकेशन लगा रखी है इस अमेंडमेंट से पहले तो भी आप इसको ठीक करो। कितने दिन में ठीक करो बताया था, कितने दिन में था वो? 30 दिन, 30 डेज। हाँ, उन्होंने कहा भाई ये 30 डेज में करो, ये क्या बात है भाई? The threshold is the requirement that there should be at least 100, है ना, या 10%, whichever is less. Moreover, they should belong to the same project, same project के होने चाहिए। तो almost all except in 2 petitions, the petitioners also had under the erstwhile regime which permitted even a single allotee। जो मैंने पहले बताया, पहले तो क्या होता था, सिंगल अलॉटी भी एप्लीकेशन लगा सकता था to move an application। तो ये इन्होंने कहा कि भाई 2 पिटीशन को छोड़ करके बाकी सारे जो है वो पुराने रिजीम वाले हैं जहां पर एक भी लगा सकता था, ठीक है। सिंपली और विद लेस देन द नंबर रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजो। अब आपने नया प्रोविजो लगा दिया, एंड दे आर विजिटेड विद द प्रोविजंस ऑफ द थर्ड प्रोविजो as per which such of those application under section 7 which has not been admitted will stand withdrawn। उन्होंने कह दिया भाई ऐसा है कि 30 दिन के अंदर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, नहीं तो ये एप्लीकेशन हम मान लेंगे कि आपने खुद ही विड्रॉ कर ली, ठीक है, आप अगर नया थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते, ठीक है। इन सम ऑफ द पिटिशंस द पिटिशनर्स आर मनी लेंडर्स। तो इन्होंने कहा भाई कुछ जो पिटिशन में जो पिटिशनर है वो मनी लेंडर है, दैट इज दे हैव स्टेप्ड इन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, तो उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट लगा दी। 30 डेज का थोड़ा सा फिर से दोबारा बुलाएंगे, 30 डेज का पीरियड के लिए क्या ऐसा है जी, ये जो आईबीसी का अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया था, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में पहले क्या प्रोविजन था, पहले ये था कि एक आदमी भी एप्लीकेशन लगा सकता था, ठीक है। सेक्शन 4 में डिफॉल्ट ट्रिगर हुआ, 1 लाख रुपए तो लिमिट होती थी तब, तो 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट ट्रिगर हुआ, लगा दी एप्लीकेशन। अब इन्होंने क्या अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया भाई, एक आदमी नहीं लगा सकता, या तो कम से कम 100 लोग हों
या फिर 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट हो, वो लगा सकते हैं। ये तब है ना, CIRP का भी ऑर्डर हुआ नहीं है अभी, एप्लीकेशन अभी एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई, एडमिट नहीं हुई है। तभी की बात है। हाँ, तो इन्होंने कहा ना कि भाई आपको ये 30 दिन के अंदर या तो और लाओ, फिर उसमें मान लो एक ने लगाई तो वो 99 और ढूंढ के लाओ भैया, या फिर 10% का क्राइटेरिया मीट करो। अगर एक महीने में नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉन मान ली जाएगी। तो 30 दिन का सिग्निफिकेंस है कि विद इन 30 days all 100 people should come together. यस, हाँ बिल्कुल, ऐसा है उसका बेसिकली वही, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट हो गया ना बेसिकली कि तो भाई फर्स्ट डे कौन सा रहेगा उसका 30 days काउंट करने के लिए? वो तो ऐसा होता है, बोथ डेज इंक्लूसिव चलता है सभी में। यहाँ पर आईबीसी में जहां पर भी डेज का क्राइटेरिया, कोई छुट्टी नहीं होती, बोथ डेज इंक्लूसिव होता है। जिस डेट से इफेक्टिव हुआ ना वहां से काउंट करना शुरू कर। In some of the petitions, the petitioners are money lenders. That is, they have stepped in to provide finance for the real estate projects. They are also visited with the requirement which is imposed upon them under the first impugned proviso, which is on similar lines as those comprised in the second proviso. उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट प्रोवाइजो में है उनके लिए भी वही कंडीशन हो गई। फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या कंडीशन है देख लेते हैं दोबारा से एक बारी। इसमें 3 प्रोवाइजो जोड़े थे ना इन्होंने। इसका पहला प्रोवाइजो ये था, रेफर्ड टू इन क्लॉजेस A एंड B। तो A और B में कौन से क्लॉजेस, A और B में कौन से आ रहे थे आपके? ये A और ट्रस्टीज तो आ रहे थे और कंसोर्टियम वाला था। हाँ नहीं, सेक्शन, हाँ 6, हाँ ये डिपॉजिट्स वाले आ रहे थे, हाँ, और वो कंसोर्टियम वाले आ रहे थे। तो कहता उसमें भी जो है आपको वही क्राइटेरिया मीट करना है। ये पहले वाले में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी फिर फटाफट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, देन देयर इज नो डाउट सेक्शन 32A व्हिच स्टैंड्स इम्प्यूग्ड बाय द क्रेडिटर्स एंड अलॉटीज के। अब उसके बाद में फिर जो है सेक्शन 32A की भी बात हो रही है। अब ये बात करता है कि ये कोड जो है इनेक्ट हुआ था। अब यहाँ पर हिस्ट्री शुरू होगी। जब जहां पर देखो आपको क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना जजमेंट में, वो एक तो शुरू के 2-4 पेज होते हैं, एक लास्ट के 2-4 पेज होते हैं, बाकी बीच में हिस्ट्री चलती रहती है। जैसे पिक्चर होती है ना, शुरुआत हुई मर्डर हो गया, पता नहीं, लास्ट में बता देता है मर्डर किसने किया। ऐसा ही इन जजमेंट्स में होता है। अब ये हिस्ट्री शुरू कर देगी पूरी कि भाई कोड जो है आपका 2016 में शुरू हुआ, और एक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर्स कंप्लीट कि भाई आपको इंसॉल्वेंसी को प्रिवेंट करना है, जो पूरा बीमार बिजनेस है उनको रिवाइव करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, यू हैव टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ये सारा हमारा प्रीएम्बल में दे रखा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ड्यूज है वो लोअर प्रायोरिटी में है। कोड जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। जो फर्स्ट पार्ट है शॉर्टेस्ट पोर्शन है, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब आपको मालूम ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 की बात करता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट पर्सन कौन है। कि कॉर्पोरेट पर्सन जो है इट मींस ए कंपनी, ठीक है, एज डिफाइंड इन क्लॉज 20। दूसरा ए LLP, और तीसरा एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेट विद लिमिटेड लायबिलिटी। ये 3 टाइप के लोग जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन। सेक्शन 3(8) बात करता है डिफाइन से कॉर्पोरेट डेटर। तो कॉर्पोरेट डेटर में क्या है कि कॉर्पोरेट डेटर मींस ए पर्सन हु ओज ए डेट टू एनी पर्सन, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सन अलग है, कॉर्पोरेट डेटर अलग है, ठीक है। We may notice that chapter 2 of part 2 which consists of section 6 to 32, भाई मेनली तो 6 to 32 में ही सारी चीजें आ गई ना। 7BC में आ गया, 10BC में आ गया, 32 में भी इसमें आ गया। चैप्टर 3 क्या बात करता है? चैप्टर 3 डील्स विद ऑर्डिनरी लिक्विडेशन प्रोसेस। चैप्टर 4 ये फिर फास्ट रहेगी। ये सारी ये कहानी बता रहा है, ये पूरा इंडेक्स डील कर रहा है कि पूरा इंडेक्स क्या है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कहता है? वो कहता है कि दैट पार्टनरशिप फॉर्म्स विद लिमिटेड लायबिलिटी ये कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर आती है। मतलब जो LLP है हमारी पार्ट 2 में आती है, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म पार्ट 3 में आती है, ठीक है। It is in regard to insolvency for the other partnership firms which has to look to the principle part 3, ठीक है।
ये तो जनरल टाइप की बातें हो रही है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, ये लिमिटेशन की बात करता है कि द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स और अपील्स बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलएटी, डीआरटी और डीआरएटी। तो लिमिटेशन एक्ट इस पर अप्लाई होता है, ठीक है। 238 ए भी हमें ध्यान में रखना। अब इन्होंने क्या कहा, जो पिटिशनर है, पिटिशनर के जो वकील थे श्री कृष्णा मोहन मेनन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ना, ये इट क्लियरली फॉल्स फाउल ऑफ द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 14 हमें पता ही है। 14 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है? हाँ जी, इक्वालिटी, इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी। हाँ, राइट टू इक्वालिटी। और 19 है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह, ट्रेड प्रोफेशन वगैरह, है ना। 21 है, 21 क्या, आर्टिकल 21 ये और 300A। तो ये कहता है जी, ये जो है, ये जो मैंडेट यहाँ पर हमारे दिया हुआ है, इसके अगेंस्ट है जो भी अमेंडमेंट हुई है। 21 पर्सनल लिबर्टी है। हाँ, ठीक है। तो अमेंडमेंट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसिंग द सेकंड प्रोवाइजो, इन्होंने ये कहा कि भाई आपने सेक्शन 7(1) में एक अमेंडमेंट कर दी। क्या अमेंडमेंट कर दी कि आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, it makes a hostile discrimination between financial creditors, the category to which the petitioners belong। भाई इन्होंने कहा ये जो आए हैं हमारे पास, ये तो सारे या तो रियल एस्टेट अलॉटीज है या कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्डर्स को फाइनेंस करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है, इन इन इनके बारे में। और दूसरे जो, भाई देखो, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का नहीं है, जो आपका रियल एस्टेट अलॉटी नहीं है या जो फाइनेंसर नहीं है, वो तो एक आदमी भी फाइल कर सकता है, ठीक है। तो आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ऐसा कौन बोल रहा है? पिटिशनर बोल रहे हैं, पिटिशनर के वकील बोल रहे हैं। Secondly, it is contended that the amendment imposing a threshold restriction is afflicted with the vice of palpable and hostile discrimination qua operational creditors, ठीक है। The purported protection sought to be accorded to the real estate developer cannot form the premise for inflicting violation of constitutionally protected freedom under Article 19(1)(g), ठीक है। भाई आर्टिकल 19(1)(g) क्या बात करता है? आर्टिकल 19(1)(g) बात करता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस है, कोई भी आदमी जैसे मर्जी बिजनेस करे। तो आप ये कह रहे हो जी ये वाले फाइल कर सकते हैं, ये फाइल नहीं कर सकते, उनका काम ही पैसे देना है। अब पैसे उन्होंने दे दिए, अगर उनका कोई पैसे वापस नहीं दे रहा, तो आप कह रहे हो नहीं जी फाइल ही नहीं कर सकते आप एप्लीकेशन, पहले इतने बंदे लेके आओ, 100 लाओ या 10% लाओ। तो ये क्या बात हुई, ठीक है ना। तो जस्ट एज मच एज इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन इनसपोर्टेबल इन्वेजन of the grand mandate of equality, ठीक है। Next, he would submit that there are inherent leakages in the impugned provisions which would make it unworkable, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि it is also bad in law, कि manifestly arbitrary है। और एक आर्गुमेंट दिया कि अमेंडमेंट जो है, it has the legally pernicious effect of creating a class within a class, a result which is frowned upon by the law, ठीक है। तो आप एक क्लास के बीच में भी क्लास क्रिएट कर रहे हो, तो ये क्या बात है? Learned Counsel would expatiate and submit that under the code the law provides for a period of 14 days for the adjudicating authority to decide। तो उन्होंने कहा भाई लॉ में, हमारे लॉ में क्या लिखा है बीसी में कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 दिन होते हैं कि भाई एप्लीकेशन एडमिट हो या नहीं हो। तो सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 डिक्लेयर्स एन इनफ्लेक्सिबल टाइम लिमिट फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस टू बी टर्मिनेटेड। मतलब 12 में क्या है, वो 180 डेज का पीरियड दिया हुआ है, वो भी एक किस्म से डिफाइंड टाइमलाइन है, ठीक है ना। The whole purport of the provisions of the code and the manner in which it is structured is geared to achieve a laudable object। भाई देखो इसका पर्पस जो है बहुत ही बढ़िया है कि भाई टाइम बाउंड मैकेनिज्म में आप चीजें करो। तो कोड एम्स एट इंप्रूविंग द रैंकिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, और इकोनॉमिक मेजर है which is intended to form the code has indeed resulted। तो इसने कोड की थोड़ी सी बढ़ाई करी। इन्होंने ये फिर पायोनियर अर्बन लैंड का भी जिक्र किया। उसमें क्या कहा, इसमें ये कहा it has elaborately dealt with the apprehension that allowing the home buyers like the petitioners who finance the builders activities to invoke the CIRP process will lead to misuse of the provisions। अच्छा, तो
पिटिशनर ये भी कहा कि जी पायोनियर मिलॉर्ड, पायोनियर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी डिसीजन आपका है, उसमें आपने डील किया है कि भाई ये जो होम बायर्स हैं लाइक द पिटिशनर, इनमें से कुछ फाइनेंसर्स भी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने बिल्डर की फाइनेंस एक्टिविटीज को फाइनेंस किया है, टू इन्वोक द CIRP प्रोसेस, it will lead to misuse of the provisions and allay the unfounded fears. Yet the legislature has wanted to place unjustifiable clause on the right of one category of financial creditors alone, which is impermissible. मतलब आपने एक टाइप के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए चीजें और डिफिकल्ट बना दी। आप भी उनमें से भी कह देते भाई एक कोई भी फाइल कर सकता है, आप कह रहे हो नहीं जी 10% होने चाहिए, 100 होने चाहिए, तो आपने क्लास के बीच में भी क्लास क्रिएट कर दी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बीच में। The specter of a speculative investor running riot and playing havoc have been adequately addressed by this court. So there is no worthwhile data of misuse by home buyer. तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तो है नहीं कि होम बायर्स ने इस प्रोविजन को मिसयूज किया हो, कि आप एक को भी लगाने दो एप्लीकेशन, क्या दिक्कत है, ठीक है। He points out the judgments passed by NCLT where the financial creditors who are home buyers approach the tribunal and the cases reflect gross and inordinate delay of nearly 5 years. Justifying the approach made by the home buyers under the code, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वो कहता है कि भाई जहां पर होम बायर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल को अप्रोच करते हैं और उनको 5-5 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स देयर आर जेन्युइन केसेस वेयर द डेटर हैड बिकम इंसॉल्वेंट एंड एज द होम बायर हैड कंप्लीट justification in knocking at the door of the competent tribunal under the code. तो बेसिकली यहाँ बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई एक को भी करने दो, आप ये क्यों कंडीशन लगा रहे हो कि 100 और 10% वाली। He took us through the reports of the parliamentary committee and complained that no reasons are discernible to justify the amendment. ये amendment की जरूरत ही नहीं है। Equally, he commended for our acceptance the observations in the dissent notes and contended that they fortify the submissions, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ना कोर्ट में भी जब बेंच बैठती है तो उसमें कुछ लोग डिसेंटिंग भी होते हैं। मान लो 3 आदमियों की बेंच है, 3 आदमी में 2 आदमी तो एक फेवर की बात कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा है नहीं भाई ये मैं तो इस बात से एग्री करता हूँ, तो वो अपना डिसेंट नोट देते हैं। तो कहते हैं कि जो डिसेंट नोट में भी आपके ऑब्जर्वेशन है वो भी हमारी कंटेंशन को ही सपोर्ट करती है, ठीक है। इन रिगार्ड टू द कंपैरिजन सॉट टू बी मेड विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इन सेक्शन 397, 398 of the Companies Act 241 and 244, he would submit that there are significant distinctions. अब ये कह रहा है कि भाई आप इसको कंपनीज एक्ट से कंपेयर मत करो, क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि कंपनीज एक्ट में दे वुड बी आर्म्ड विद डिटेल्स रिगार्डिंग शेयर होल्डिंग व्हिच आर ऑलवेज अवेलेबल हैविंग रिगार्ड टू द स्कीम ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो वहां पर तो शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल रहती है। ऑन द अदर हैंड, ही पॉइंट्स आउट दैट जो होम बायर्स के केस में जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, कोई डेटा ही नहीं मिल सकता, ठीक है ना, कि और दूसरे कौन से लोग हैं भाई। एक आदमी ने एप्लीकेशन लगाई, तुम कह रहे हो 99 और ढूंढ के लाओ, कहां से ढूंढ के लाएगा अगला, कोई ऐसा डेटा तो है नहीं, है कि नहीं। तो who have sunk their hard earned money in real estate project, there is no system under which they could obtain data or information regarding the persons similarly circumstanced and whose cooperation and support is necessary under the impugned amendment to activate the court. तो उन्होंने कहा भाई मैं कहां से ढूंढ के लाऊं, मैं एक बंदा हूं, मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैंने एप्लीकेशन लगा दी, तुम कह रहे हो नहीं जी 99 और ढूंढ के लाओ, नहीं तो तुम्हारी भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे। Secondly, he would submit that having regard to the explanation in section 244 of the Companies Act, it brings about clarity in regard to situation where there is a joint holding, ठीक है। सेक्शन 2 एक मिनट, सेक्शन 244 खोल लेंगे जरा कंपनी एक्ट का, या मैं कंपनी एक्ट लेके आता हूं, एक मिनट, पता नहीं फिर पढ़ा भी है, रेफरेंस है। हाँ, सो 244 में 241 का रेफरेंस है और 244 मींस एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन द केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ओके ओके, ठीक है। वहां पर भी 100 एंड 1/10 का क्राइटेरिया। हाँ, तो वो कहता भाई वहां तो सारी चीजें हैं, शेयर होल्डिंग का सब कुछ डेटा है, यहाँ होम बायर के बाद कहाँ डेटा है, एक बंदा दूसरे को कहाँ ढूंढेगा। Secondly, he would submit that having regard to the explanation section 244, it brings about clarity in regard to situation where there is a joint holding, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कोई सिमिलर प्रोविजन है नहीं, the absence of any such similar provision in section 7 of the code is emphasized in an attempt at persuading the court to overturn the law.
He would further point out the practical difficulties in the working of the amended law. He submits the date of default. Date और default भी अलग अलग होगी, सबका एक ही दिन थोड़ी default हुआ होगा. Therefore, to forge a common complaint impelling a group of home buyers to come together is impracticable and not workable. उन्होंने कहा भाई ये impractical है, कहाँ से 100 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे. He would submit that legislature cannot be permitted to take away through one hand what it has given by the other. एक तरफ से आप कह रहे हो भाई आप कर सकते हो, दूसरी तरफ से आप कह रहे हो नहीं कर सकते, तो ये तो ठीक नहीं ना. Practical impossible है. हाँ, practical. learned counsel would further contended that as far as the third proviso is concerned, अब third proviso पे आ जाओ. Third proviso पे क्या है? It is while accepting the position that the 14 days period for disposal of the matter under the code has been understood to be directory and not mandatory, at the same time it cannot be the law that a case would grace the docket endlessly and never witness an end, and the retrospectivity which it reflects clearly renders it arbitrary. अच्छा भाई वो म्यूट कर दो जिसकी भी आवाज आ रही है. तो अब श्री शिखिल सूरी, learned counsel for the petitioner and petition would submit that the impugned amendment is arbitrary. ठीक है, being in the teeth of the principles laid down in Pioneer. ठीक है, Pioneer का जिक्र, सप्रा का मतलब होता है पहले उसका पूरा आपने साइटेशन दे दिया है. सप्रा का मतलब पहले से ऑलरेडी साइटेशन इसका ऊपर दिया जा चुका है. The object of the law would stand defeated in contents. ठीक है, the ordinance would not only deprive the petitioner of a right under section 7, but it, यार कौन बोल रहा है, म्यूट कर दो प्लीज, जो कोस्ट इसीलिए तो बना रखे हैं. The object of the law would stand defeated the contents. The ordinance would not only deprive the petitioner of her rights under section 7, but it also violates article 14 of the Constitution of India. जो threshold limit है ये unreasonable है और arbitrary. ठीक है, हाँ, it is not in public interest. ठीक है, he also points out that there exists adequate shield against a single allotee misusing the code. उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये आप सोचोगे सिंगल allotee misuse कर लेगा तो उसके अगेंस्ट में adequate shield है. तो the threshold is thrust upon only on the home buyer and is not applicable across the board for other financial creditors. ठीक है, it is discriminatory. There is no rationale. It treats equals unequally and unequals as equal. There is no intelligible differentia. The law does not permit classes among financial creditors. तो भाई आपने ये पहले तो कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर अलग अलग होते हैं, वो तो ठीक है. अब फाइनेंशियल क्रेडिटर के बीच में भी आपने क्लास क्रिएट करनी शुरू कर दी. ठीक है ना, तो देयर इज ब्रीच ऑफ द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. द थ्रेशोल्ड इन सेक्शन 4, सेक्शन 4 में कितना है, वो डिफॉल्ट है. नेमली डिफॉल्ट ऑफ ₹1 crore इज द वन व्हिच अप्लाइज टू ऑल क्रेडिटर. भाई सेक्शन 4 वाला जो डिफॉल्ट है वो तो फाइनेंशियल क्रेडिटर पे भी अप्लाई होता है और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स पे भी अप्लाई होता है. ठीक है ना. इट इज inapplicable as to how in regard to home buyers a different threshold should be insisted upon. ठीक है, the remedy of the home buyer is defeated. The ordinance was brought in haste without proper discussion and debate. The amendment takes away the vested right of the home buyer. There is no intelligible differentia bearing in excess with the object and purpose of the act. He also emphasized the practical difficulties involved in arranging the necessary numerical strength under the impugned provision. ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये श्री पीयूष सिंह आए, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स. इन्होंने क्या कहा कि भाई एक बार राइट दे दिया आपने, देखो जब उसने अप्लाई किया उस टाइम राइट था, है ना. Once the right is conferred to make an application, then it cannot come conditioned with threshold limit. अब बाद में आपने कंडीशन लगा दी, भैया ये लेके आओ, बाकी और इकट्ठे करो, एक तो वही 99 और इकट्ठे करो, नहीं तो ये विड्रॉल मान ली जाएगी. जब एप्लीकेशन लगाई तब तो राइट था ना. ठीक है ना. As it is provided in the impugned proviso. Secondly, he would point out that there is manifest arbitrariness. That apart, he would also contend that there is hostile discrimination qua other corporate debtors. The builder who is a corporate debtor, in other words, is given a more favorable treatment than other corporate debtors, which is afflicted with the vice of hostile discrimination. ठीक है. He also complained of both
ओवर एंड, मतलब इसका आपको तो देखो बिल्डर को तो फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल गया ना, कि दूसरे बंदे 100 इकट्ठे करके लाए तब होगा, 100 इकट्ठे हो गए नहीं तो कैसे होगा। हाँ ये तो हो गया था हमारा। हाँ next, learned counsel submits that the very object is discriminatory, drawing our attention to both Chitra Sharma and others and Pioneer. दोनों में उन्होंने कहा he would highlight that having regard to the background in which the rights of the home buyers were recognized as being one of that of a financial creditor, the amendment is clearly impermissible. भाई दोनों में तो आपने right दिया था home buyers को. He would also submit that having regard to the stand taken by the government in the case before this court, in particular Pioneer, the principles of promissory estoppel will apply and prevent enactment of the impugned provision. तो आपके पास ये promissory estoppel का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जब एप्लीकेशन दिया तब राइट था, बाद में आपने छीन लिया। He would expatiate and submit that the conditions which have been imposed render the remedy illusory. तो आपने तो ये तो illusion create कर दिया, रेमेडी तो मिलेगी नहीं इस तरह से। He drew our attention to order 1 rule 8 of the CPC and also took us to the explanation therein. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोवाइजो है it is not on similar lines as order 1 rule 8. So this is for the reason that under the procedure under order 1 rule 8, the numerical stipulation in the impugned provision is not insisted upon. Once persons having same interest institute a civil suit, after following the procedure, all persons having the same interest become involved and what is more would be bound by the decision. ठीक है, तो सेक्शन 12 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उन्होंने फिर सीपीसी से भी रेफरेंस ड्रॉ किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की भी बात की कि भाई जितने भी एक आदमी के अगेंस्ट में आपने डिसीजन दे दिया वो सब पर अप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा ही जो अगर सेक्शन 12 अगर हम देखें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वहां पर भी क्या है, वहां पर भी ऑर्डर 1 और रूल 8 को दिखता है कि इट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ क्लास इंटरेस्ट, पर ये नहीं कि सारे मिलकर के एप्लीकेशन लगाएं, एप्लीकेशन एक लगा देगा सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा वो चीज। And also protect class interest without putting stiff barriers as threshold limits as done by the impugned amendment. He pointed out that the real estate owners do not take any loan from financial institutions. उन्होंने कहा ये जो बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट ओनर्स हैं ये नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेते, ठीक है। इनको तो पैसे कौन देता है, इनको होम बायर्स ही पैसे देते हैं बेसिकली, ठीक है ना, अलॉटी से ही पैसे लेते हैं वर्चुअली। इन सच सर्कमस्टांसेस टू पुट दिस थ्रेशोल्ड लिमिट इज clearly impermissible. He drew our attention to the judgment of the court in Motilal Padampat Sugar Mills Company Limited. इसमें क्या कहा, to buttress his submission regarding availability of principles of promissory estoppel, ठीक है। तो उन्होंने कहा मैनिफेस्टली ये आर्बिट्ररी प्रोविजन है और रेरा जो है जैसे कि भाई रेरा हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन ऑल द स्टेट्स, ठीक है ना। भाई होम बायर जाएंगे कहाँ, या तो रेरा में जाएंगे या आईबीसी में जाएंगे, रेरा सारी स्टेट्स में अभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। तो he also made an attempt at pointing out the perception that the amendment is to confer an unmerited advantage on the builder, ठीक है। तो बिल्डर को एडवांटेजेस पोजीशन में आप ला रहे हो। This he purported to do by drawing our attention to an article in a newspaper. He essentially projected this argument as a thinly disguised argument of malice against the lawgiver. He also sought to draw support from the judgment of this court. ये नागपुर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो जजमेंट थी उसमें कहा कि भाई ये तो हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। एलॉटी की डेफिनेशन उन्होंने कहा, रियल जो रेरा में एलॉटी की डेफिनेशन है वो पढ़ के देखो क्या कहती है। इट इज हियर दैट ही कंप्लेंट ऑफ द प्रोविजंस बीइंग अंडर इंक्लूसिव एंड ओवर इंक्लूसिव। द लेजिस्लेचर ही पॉइंट्स आउट should have waited and at best could have acted if there is impeachable and empirical evidence warranting such a drastic incursion into the vested right of the home buyer. He also highlighted that in law there can only be one default, ठीक है, कि भाई एक होम बायर who before the amendment could by himself set the law into motion. अब उन्होंने कहा भाई पहले एक आदमी कर सकता था, आप कह रहे हो और भी ढूंढ के लाओ आप, ठीक है ना, is now left at the mercy of similarly circumstanced persons, which itself is rendered impossible by the absence of information generating mechanism which is accessible. ऐसा कोई information तो है ही नहीं किसका डिफॉल्ट हुआ किसका नहीं हुआ,
He would also point out that the dates of the agreements of different home buyers would, उनकी date of agreement different होगी, default की date different होगी. कहाँ से मिलाएंगे हम लोगों को? Depending upon the dates of the agreements being different, it is incontrovertible. He points out that the date of default would be different. ठीक है ना? भाई एक का एग्रीमेंट 2004 में हुआ, दूसरे का 2016 में हुआ, तो नेचुरली डिफॉल्ट की डेट भी डिफरेंट होगी. He would pose the question as to how, in such circumstances, the law could insist upon a home buyer assembling together other home buyers and that to 100. कह रहे आप ये 100 ढूंढ के लाओ या 1/10 लाओ टोटल नंबर ऑफ अलॉट, ये तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. ठीक है ना? It is inconceivable as to how the provision can be worked in a reasonable and fair manner. जो राहुल राठौर थे, ये भी कुछ पिटिशंस में काउंसिल थे. इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो इंसॉल्वेंसी है ना, इट हैज बीन प्रेडिकेटेड प्रोजेक्ट वाइज. ठीक है. He would submit that under the impugned amendment, the allottees are to be culled out from among. आप अब इसमें तो क्या है, इन्होंने कह दिया भाई रियल एस्टेट की जो आप इंसॉल्वेंसी कहते हो, ये तो प्रोजेक्ट वाइज करो, तो हमें एक प्रोजेक्ट के ही ढूंढने पड़ेंगे, 100 ढूंढने पड़ेंगे या 10% ढूंढना पड़ेगा. In other words, the requirement under the provision is that the applicant must be 100 allottees or 1/10 of the allottees of a particular real estate project. ठीक है. He would point out that the corporate body may be having different projects. ठीक है. If that be so, there is no rationale in insisting that the said corporate body has become insolvent qua the particular project in which the applicants are interested. Insolvency, in other words, would be a financial malaise which afflicts the corporate body as a whole qua all its projects. ठीक है. If the allottees can be drawn from other projects undertaken by the company, then maybe it may have rendered the provision more reasonable. ठीक है. उन्होंने कहा भाई ऐसा है, या तो आप कंपनी वाइज देखते, आप इंसॉल्वेंसी को तो आप कंपनी वाइज देखोगे ना, या प्रोजेक्ट वाइज इंसॉल्वेंसी आप देखोगे. या तो आप कहते हैं भाई कहीं किसी भी प्रोजेक्ट से ले आओ 100, फिर तो फिर भी रखता. बट दिस इज नॉट सो. द प्रोविजंस आर इररेशनल. होम बायर इज अ पर्सन जो अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग लगाता है, वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में होता है. आप उसको प्रोटेक्शन देने की बजाय आप उसको और चीजें कंडीशंस लगा रहे हो उसके ऊपर. ठीक है ना? ऑप्रेसिव और बर्डनसम कंडीशंस लगा रहे हो, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं भाई, दूसरे अलॉटी से वो कैसे बात कर लेगा. ठीक है ना? तो देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद डिटेल्स रिगार्डिंग द अलॉटीज. लिमिटेशन एक्ट जो है, इट अप्लाइज इज हेल्ड बाय दिस कोर्ट. यू वुड आल्सो अपीयर टू रिलाई ऑन द थ्योरी ऑफ ए सिंगल डिफॉल्ट, कि भाई ये जो है सिंगल डिफॉल्ट पे चलना चाहिए. ये थोड़ी कि किसी का डिफॉल्ट कब हुआ, किसी का डिफॉल्ट कब हुआ, हम कहां से लाते रहे बंदे. द कंडीशंस आर इम्पॉसिबल टू फुलफिल. द होम बायर इज बीइंग शट आउट एट द वेरी थ्रेशोल्ड. इसका मतलब तो आप होम बायर को रेमेडी देना ही नहीं चाहते. ठीक है. श्री दिनेश सी पांडे, he would also contend that जो section 6 है of the General Clauses Act would protect all the pending applications. तो उन्होंने कहा जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन है ना, तो अगर हम सेक्शन 6 देखें जनरल क्लॉज एक्ट का, इट वुड प्रोटेक्ट ऑल. तो एक बार गूगल पे सर्च करके देखिए सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है. और हम में से सभी को ये जनरल क्लॉज एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए. लॉ के नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है. कोई भी चीज जो किसी भी लॉ में नहीं लिखी, वो आपको फिर वहां से देखनी पड़ती है. तो एक बार चक्रवर्ती जी गूगल करिए जरा, सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट क्या बोलता है, और पढ़ के बताइए सबको. म्यूट किया हुआ है तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ. हाँ, अनम्यूट तो आप कर सकते हैं. ग्रुप चैट में लगाया सर. अच्छा, लगा दिया, वेरी गुड. हाँ, ये सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या बोलता है. इट सेव्स इंटर एलियर राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशंस और लायबिलिटीज एक्वायर्ड, accrued or incurred under any enactment so repealed, and even the penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of offense committed against any enactment so repealed. ठीक है. तो अगर मतलब ये है कि अगर कोई लॉ रिपील हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जो राइट्स दिए गए थे, जो प्रिविलेजेस दिए गए थे, वो जो है उसके अगेंस्ट में उन राइट्स को सेव करता है जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी पेंडिंग है. बेसिकली बात सेक्शन 6 ये बोल रहा है. ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद में ध्रुव गुप्ता, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग इन पिटीशन, इतना उन्होंने क्या कहा कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिविटी स्पेल्ट आउट
बाय द इम्प्यूग्ड प्रोविजन, द राइट विच वाज वेस्टेड राइट। ठीक है ना भाई, आप जब अप्लाई किया तब आपके पास राइट था, तो ये तो वेस्टेड राइट था, सब्सटैंटिव राइट था। द लॉ कुड ओनली बी प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, आप अगली एप्लीकेशन के लिए कह सकते हो, पुराने के लिए कैसे कह सकते हो। He draws our attention to the judgment in BK Educational Services. He also lays down the principle. तो ये सब ने बेसिकली वही बात की है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, लास्ट में इसकी जजमेंट पढ़ लेते हैं। मोटी मोटी बातें आपने पढ़ ली सारी, इसमें ये कहानी करता रहता है। अब लास्ट में क्या करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जजमेंट पढ़ने के बाद आप फिर पीछे से पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल लास्ट पेज से। इसका लास्ट पेज कौन सा है जजमेंट का, एक बार बता सकते हैं कोई। अगर किसी ने लैपटॉप पे खोल रखा है तो हाँ सर, एक सेकंड। क्योंकि ये तो सारे रेरा वगैरह के सबके प्रोविजन डिस्कस करेगा ना पूरा, तो वो लंबा चौड़ी बातें हो जाती हैं, उसमें इतनी कोई बात होता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट। ये जज लोग सब ऐसे इतने बड़े जजमेंट कैसे लिखते हैं? वो थोड़ी लिखते हैं, तो बताना तो है। पूरी टीम होती है जी इनकी, उसमें क्या होता है कॉपी पेस्ट करता रहता है वो सब कह लोग। देते हैं वहां से, हाँ ये यहाँ ये सेक्शन यहाँ से डाल दो, डेफिनेशन यहाँ से डाल दो। तो वो खुद कौन सा लिखता है? खाली जजमेंट, तो लास्ट में जो है वही। हाँ बेसिकली क्या होता है, कई बार दूसरी जजमेंट से भी लेते हैं कुछ पोर्शन, कुछ एक्ट से ले लेते हैं, इस तरह से करते हैं। नहीं, अपना खुद का क्या लिखता है वो तब? हाँ खुद का तो बेसिकली क्रक्स ही होता है, और क्या, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वो भी उसका टीम लिखता है कि जज खुद लिखता है? नहीं देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े लर्नेड जजेस बैठे हुए हैं, तो करते तो हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ टीम, पूरा ऑफिस होता है, सब कुछ होता है। बट जो भी जजमेंट लिखते हैं अपने आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ते तो हैं ही फाइनली, फिर क्या लिखा किसी भाई टीम में ने क्या लिख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जज की आ जाती है ना, साइन तो उनको ही करने हैं ना अल्टीमेटली। ये अंडरलाइन वंडरलाइन वो खुद करते हैं कि वो टीम करता है? गुप्ता जी, आपको ही बार में जाना चाहिए था।
बार में तो हम जाते ही हैं दारू शारू पीने। अरे वो वो इसलिए बात तो कह रहे हैं कि ये वाला बार नहीं, कोई और बार में की बार काउंसिल। सर बी स्पेसिफिक। ये तो मजे लेने के लिए तो तैयार रहते हैं। आप भी ऐसे कुछ बोलते हैं, कुआ सुपरा ऐसे कुछ बोल देते हैं आप। Exactly. हमको ये तो पता नहीं था कि 1 2 3 ऐसे लिखते आल्सो। अभी पता चला। हाँ। तो नहीं, जो- आपने तो एलएलबी पास भी किया है ना, आपको तो बाहर में थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। एलएलबी तो किया है। ब्लैक कोट लेने का और तो कुछ नहीं है आपको, बाकी सब तो पता है। दर्जी को बोल दो भाई ब्लैक कोट। और वहाँ चैम्बर भी मिल जाएगी आपकी, जितनी पकड़ है। नहीं, आई मीन वाला चलता है कि अलग से बनाना पड़ता है वो ब्लैक ऊपर जो लोग पहनते हैं? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में पहनते हैं नॉर्मली, वो जो गाउन टाइप होता है। गर्मी में भी पहन के जाना पड़ता है ना। हाँ, गर्मी में। एक तो 70 पेज तक तो पहुंच गया इसका, फिर भी नहीं मिल रहा है। हाँ 465 में है क्या, एक बार देखना सर, हैं? पेज नंबर 465। ये तो 1600 के ऊपर चला गया ना। ये कैसे पढ़ पाएंगे गुप्ता जी 400 पेज? आधा घंटा पढ़ने से तो नींद आ जाता है। भाई देखो, गर्मी का मौसम है, बियर साथ में रखो, सिप लेते रहो, पढ़ते रहो। और क्या? फिर हमारे लायक क्या है सर? फिर हमके लिए आप क्या आप पता? आप लस्सी लेकर इंतजाम खुद करो। आप- खुद हमको इंतजाम लस्सी करो। ले लो। नहीं आप लस्सी ले लो, लस्सी। लस्सी ले लो, पानी ले लो, और कुछ भी नींद ले आ लो। जाती है, लस्सी से और जल्दी नींद आ जाती है। बंद ही कर सकते हैं। चाय पी ये लो, तो किताब बाहर में ले जाना पड़ेगा, घर में तो नहीं होगा। चाय पी लो, उसमें क्या है? बस ग्रीन टी पे ग्रीन टी पिया जा रहा है। देखो, ये भी पढ़ने का भी एक नशा होता है। पता नहीं वो तो नशा कब का उतर गया। वो वाली नशा। गुप्ता जी जो आपने उस दिन कॉफी पिया था ना, तो ऐसे 2 दिन कॉफी चाहिए पढ़ने के लिए। 465 पेज। सही बात है। सही जगह ले गया ना हमको साहब। तो इस जजमेंट का 465 देख लेना, पेज नंबर। अच्छा। आप डायरेक्ट पेज के ऊपर जा सकते हैं ना, 465 टाइप कीजिए। ना ना वो ये दोनों एडेड है, तो 1440 है तो 1900 करीब देखना पड़ेगा। हाँ। कंट्रोल F डाल के 465 सर्च कीजिए सर। कितना? गुप्ता जी आप भी एक ऐसा कुछ केस का जजमेंट लेके जाइए। 465 पहुंच गया? ना कुछ और आ रहा है ये क्या? 464 ये ESPN सॉफ्टवेयर आ गया इसमें। वो हेडिंग है ना, वो पेज नंबर का। पेज नंबर कौन सा था इसका? एक सेकंड। इसके लिए हार्ड कॉपी हमेशा अच्छी रहती है। हाँ, वो तो है, हार्ड कॉपी में तो फटाफट हो जाता 1905 है शायद। है। 1905। 1905 है तो कंट्रोल F से आएगा 1905। हाँ पेज नंबर 464 465 आ जाएगा सर। है कंट्रोल F से 464 465 आ जाएगा। तो 465 तो अच्छा। नहीं आपको 1905 डालना पड़ेगा। इसमें पेज नंबर पे डाल लीजिएगा 1905। अब पहुंच गए थे हम, एक मिनट। नहीं लेफ्ट ये में यहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए। देखो ये ना, इससे अगला आ गया। फिर अब यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ ये जजमेंट आई है आपकी, ये KM जोसेफ जो थे। रिलीफ देखो, करके जो है वहां से पढ़नी है। अब आ गया। हाँ हाँ राइट 372 जो पैरा नंबर कुछ है। हाँ, बस सही पहुंच गए सर। यहाँ पहुंच गए। 102 देखो डाल देने थे। बस ये है जी, ये रहा असली हाँ। चीज ये है। दवाई क्या दी फाइनली? ये दवाई का जजमेंट ऐसे पढ़ने से चलेगा? दवाई पढ़ के छोड़ दे? नहीं नहीं, पढ़ो। ऐसा नहीं, आधा करके नहीं होगा। पूरा पढ़ो तो भाई, पूरा बच्चा तो पढ़ना बैकग्राउंड पड़ेगा। नहीं समझेगा तो उसका कोई आंसर से कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, ये तो मतलब तो पूरे देखो हो गए। ऐसा है, ये तो ऐसे जैसे लास्ट में पिक्चर में दिखा देते हैं दोनों का शादी हो गया। अब बाद में वो लड़के ने लड़की के ससुर को क्या कहा, वो तो बीच में कहीं लिखा होगा। अभी गुप्ता जी हमको अगर बियर सिप करके पढ़ना पड़ेगा तो आपका ही ब्रांड का बियर लेना पड़ेगा हमको। क्योंकि हम लोग अभी आपके इशारे पे चल रहे हैं। तो रिलीफ में देखो वी अपहोल्ड दी। इन्होंने कहा भैया जो अमेंडमेंट हुई है सही है, ठीक है। उसमें कह रहे थे ना अमेंडमेंट गलत है, ये है वो है। इन्होंने कहा कि भैया ये अमेंडमेंट सही है, हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग डायरेक्शंस, ठीक है। इन्होंने कहा ये डायरेक्शन आप फॉलो कर लो। क्या कहा? वो ये कहा कि भाई इफ एनी ऑफ द पिटिशनर्स मूव एप्लीकेशंस
in respect of the same default, ठीक है, as alleged in their applications within a period of 2 months from today, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी पिटिशनर्स जो एप्लीकेशन मूव करते हैं सेम डिफॉल्ट के बारे में जो इनकी एप्लीकेशन में एलिज्ड है 2 महीने के अंदर, also compliant with either the first or the second proviso as the case may be, then they will be exempted from the requirement of payment of court fees in the manner in which we have detailed in the paragraph just herein before। उससे पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई 2 महीने के अंदर जो लोग भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे उनको कोर्ट फीस से हम छुटकारा दे देंगे, जो कि इससे पहले के पैरा में क्या कहा, पहले के पैरा में क्या कहा वो भी देख लेते हैं। तो ये पहला पैरा तो इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो पहला पैरा बोला कि भाई एक इसमें कोर्ट फीस का भी क्वेश्चन है। कोर्ट फीस की क्वेश्चन की बात ये है, एज फार एज कोर्ट फीस इज कंसर्न्ड इट इज ट्रू दैट इन दिस देयर इज कंपेल्ड विथड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन, कि भाई हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप विथड्रॉ करो, ठीक है ना। The other side of the picture is even according to the petitioners, the applications engaged the adjudicating authority and the time was spent on the applications. So in these circumstances we would resort to our power under article 1, तो article 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि we would direct that in case applications are moved by the applicants who are petitioners before us, ठीक है, जिन्होंने भी पिटिशन, हमने पहले पेज पे देखा था बहुत सारी पिटिशन फाइल हुई थी, तो उन्होंने कहा जितनी भी पिटिशंस फाइल हुई हैं, जो भी पिटिशनर हैं वो क्या करें, in regard to the very same corporate debtor in the same real estate project, as far as the allottees are concerned, इनको कोर्ट फीस देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर जॉइंट एप्लीकेशन है तो एक को ही देनी पड़ेगी, टू ए सिंगल एप्लीकेशन इन फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एक से ज्यादा एप्लीकेंट है, ठीक है, जो भी पेंडिंग एप्लीकेशन, मतलब क्या है, देखो एक ने एप्लीकेशन लगा रखी थी, इन्होंने क्या कहा था अमेंडमेंट में कि भैया 100 लेके आओ। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें ज्वाइन होंगे और ज्वाइन होंगे तो उनको फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आदमी तो लाइन में लगा ही हुआ है, ठीक है ना। इफ दे कंबाइन इन फ्यूचर एप्लीकेशन दे वुड स्टैंड एग्जेम्प्टेड। सेकेंडली, इन केस एनी ऑफ द एप्लीकेंट्स if they were to move jointly with the requisite number under the second proviso, the exemption will be limited only to once, ठीक है। तो जो सेकंड प्रोवाइजो में है उसके लिए एक बार की एग्जम्पशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि if exemption has been availed of by anyone out of the joint applicants in conjunction with others, then the other joint applicants cannot claim। तो बेसिकली यहाँ तो कोर्ट फीस की बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो ही गया। अगला, secondly, we direct that the applications are moved under section 7 by the petitioners within a period of 2 months from today। एक इन्होंने कह दिया कि भाई 2 महीने के अंदर जो डेट ऑफ जजमेंट से, ठीक है, as the case may be, and the application would be barred under article 137 of the Limitation Act on the default alleged in the applications which were already filed if the petitioner files applications under section 5 of the Limitation Act. The period of time spent before the adjudicating authority shall allow the applications and the period of delay shall be condoned in regard to the period। तो ये सब ये मतलब जो ऑर्डर है हाँ, ये खाली ये पर्टिकुलर केस के लिए ही एप्लीकेबल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ऑमनिबस। देखिए मेन बात तो ये पता क्या है भाई, इसके बाद अमेंडमेंट एक्ट के बाद तो वो तो फिर करना ही था उनको, 100 या 10% वालों पे ही हो सकता था ना। ये तो जो ये बीच में अटके हुए थे, जब एप्लीकेशन लगाई तब ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी, जब बाद में बीच में अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ये उन्हीं के लिए तो है ना, ये केस ही उनके लिए है। गुप्ता जी एक नया अमेंडमेंट एक्ट करके आना चाहिए। We make it clear, एक मिनट, we make it clear that the time limit of 2 months is fixed only for conferring the benefits of exemption from court fees and for condonation of delay caused by the applicants pending before the adjudicating authority, ठीक है ना। तो ये जो टाइम लिमिट है 2 months की, it is fixed only for conferring the benefit of exemption from court fees and for condonation of the delay caused by the applications pending before the adjudicating authority। वो कहता है कि जो पिटिशनर है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 2 महीने के बाद भी, एंड दे कैन सीक द बेनिफिट ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 इन रिगार्ड टू द पीरियड जिसमें ये पेंडिंग थी, ठीक है, अंडर द अनअमेंडेड सेक्शन 7।
तो ये जो आर्टिकल 142 का जो बेनिफिट है, इट विल बी अवेलेबल ऑल्सो टू द पिटिशनर्स इन द ट्रांसफर्ड केस। बस बेसिकली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही कह दिया कि भाई जिनको इस वजह से डिले हो गया वो फाइल कर दें, अगर एक है नए ज्वाइन करना चाहे उसमें नए ज्वाइन कर दें, 2 महीने का पीरियड दे दिया। बेसिक बातें इसके अंदर यही है। और कोर्ट फीस छोड़ दिया इसके अलावा 1 मिनट, तो व्हाट इज द जजमेंट? जजमेंट यही है कि जो पहले चल रहा, जो आया अमेंडमेंट सही आया। जजमेंट इतनी है इसमें कि जो अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट को निगेट नहीं किया इसने सुप्रीम कोर्ट ने। तो होम बायर जो है वो 100 आदमी ढूंढना पड़ेगा उसको, ढूंढना पड़ेगा, हाँ। और इन्होंने कह दिया भाई 2 महीने के अंदर ढूंढ लो, आप 2 महीने के अंदर ढूंढ लो, कोर्ट फीस नहीं लगेगी उनके ऊपर, ज्वाइन करोगे तो नए, बाकी कुछ नहीं। ये 30 दिन का 2 महीने तक बढ़ाया इन शॉर्ट। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कह सकते हो। और 2 महीने इस जजमेंट की डेट से बढ़ाया, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट। और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ये पर्टिकुलर आदमी लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना रिट पिटिशन है उनके सब के लिए हाँ मेरे ख्याल से। बिल्कुल 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 यही है। अगला करें या थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट केस में कोई ऐसा प्रिंसिपल लेट डाउन नहीं किया है, ये एक जनरलिटी में बहुत गया है ये पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रिंसिपल सेट आउट नहीं किया कोई ऐसा। ऐसा करते हैं